Hello bachcho, let's read this question. The question says, two lines are drawn from point P alpha comma beta which touches y square is equal to 8x at a comma b and touches x square by 4 plus y square by 6 equal to 1 at c comma d. Then option A alpha plus beta equal to minus 4, option B alpha beta equal to 4, option C area of triangle PAB is 128 root 2, option D area of triangle PAB is 32 root 2. क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है, तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लगेगा, फिर उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स भी लगेगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला भी लगेगा. सो की कॉन्सेप्ट, equation of ellipse is given by x square by a square plus y square by b square equal to 1, and equation of tangent for ellipse is given by y is equal to mx plus c. Now equation of parabola. Y square is equal to 4ax, and equation of tangent for parabola is equal to y is equal to mx plus a by m. गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फिगर कुछ ऐसे बनेगा एंड दिस विल बी पैराबोला. पैराबोला यहाँ कंसिडर करेंगे. ये जो है वो टेंजेंट्स है और ये हमारा इलिप्स है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. गिवन इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1. अगर हमने टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c लिया है फॉर इलिप्स, तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ओके, तो हम y इज इक्वल टू mx प्लस c को टेंजेंट कंसिडर कर रहे हैं. इज द टेंजेंट which satisfies the equation. अब y के जगह आएगा mx प्लस c. लेट्स सॉल्व. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर के जगह आएगा mx प्लस c. mx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 24. सो सॉल्व करते हैं इसे. 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसे एक्सपांड करने पे होगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx mcx प्लस c स्क्वायर equal to 24. So this will be 6x square plus 4 m square x square plus 8 mcx plus 4 c square is equal to 24. So that will be 6 plus 4m square x square plus 8 mcx plus 4c square minus 24 equal to 0. अगर ये लाइन एक पॉइंट पे ही टच करेगी टेंजेंट को, राइट, हमारे ये टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करने वाले हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0. Therefore, determinant will be 0. अब determinant is nothing but v square minus 4ac.
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें बी स्क्वायर मिलेगा 8mc स्क्वायर, ए 6 प्लस 4m स्क्वायर मिलेगा और c विल बी 4c स्क्वायर माइनस 24। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। सो दिस विल बी 8mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 6 प्लस 4mc स्क्वायर m स्क्वायर इंटू 4c स्क्वायर minus 24 equal to 0. So this will be 64 m square c square minus 96 c square plus 576 minus 64 m square c square plus 384 m square is equal to 0. अब ये 64 m square c square और ये 64 m square c square कैंसिल हो जाएगा. So therefore minus 96 c square plus 384 m square plus 576 equal to 0 होगा. इसे जब हम 96 से डिवाइड करेंगे so that will become minus c square plus 4m square plus 6 equal to 0. So this will be c square is equal to 4m square plus 6. Okay. अब equation of parabola consider करते हैं. Equation of parabola is given by क्वेश्चन में दिया है y square is equal to 8x. कंपेयर करने पे इसकी जनरल इक्वेशन है y square is equal to 4ax. इसको कंपेयर करने पे हमें मिलेगा कंपेयरिंग we get 4a is equal to 8. तो a हो जाएगा 2. a 2 मिल गया. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला विल बी इट इज गिवन बाय y is equal to mx plus a by m. a तो 2 मिला तो 2 by m होगा. So equation of tangent for parabola. So that will be y is equal to mx plus a by m, that is 2 by m. Now यहाँ हमें मिला y is equal to mx plus 2 by m. यहाँ था y is equal to mx plus c. अब c और c जो इंटरसेप्ट्स है वो तो सेम ही रहेंगे, राइट? तो हम लोग उन दोनों को इक्वल लेंगे. इंटरसेप्ट्स आर सेम. इंटरसेप्ट्स तो सेम है. therefore c square is equal to a by m the whole square. So a by m is 2 by m the whole square is equal to c square. c square हमें मिला है 4m square plus 6. So this will be 4 by m square is equal to 4m square plus 6, which will be plus 6m square minus 4 equal to 0. इसे सॉल्व करते हैं फर्दर. दिस विल बी फैक्टराइज करने पे हमें मिलेगा प्लस 8m square minus 2m square minus 4 equal to 0. So this will be 4m square कॉमन लिया m square plus 2 minus 2 m square plus 2 equal to 0. Therefore 4m square minus 2 into m square plus 2 equal to 0, which implies m square is equal to 1 by 2 and m square is equal to minus 2. अब minus 2 तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. therefore m square is equal to 1 by 2, which implies m is equal to plus or minus 1 by root 2. m मिल गया. c square रहेगा. c square is equal to 4m square plus 6. हमने सॉल्व करने पे मिला था
तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 6 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 1 बाय रूट 2 स्क्वायर प्लस 6। अब -1 बाय रूट 2 लूँ या +1 बाय रूट 2 लूँ, दोनों स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाएंगे। सो देयरफॉर 4 इंटू 1 बाय 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 6 which is equal to root of 8 which is equal to that is 2 root 2। तो मुझे c मिला 2 root 2, m मिला प्लस और माइनस 1 बाय रूट 2। ये यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स लिख सकती हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स इज mx प्लस c। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स निकालते हैं। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c है, हमने m और c फाइंड कर लिया। दिस विल बी y इज इक्वल टू m हमें मिला है 1 बाय रूट 2, सो दिस विल बी x बाय रूट 2 प्लस c दैट इज 2 रूट 2। नाउ अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट करना होगा। इफ y इज इक्वल टू 0 देन 0 इज इक्वल टू x बाय रूट 2 प्लस 2 रूट 2 which implies 0 is equal to x plus 2 into 2 that is 4, so which implies x is equal to minus 4। therefore alpha मुझे मिला -4 and beta will be 0 जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हमें। इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा विल बी -4 plus 0 which is equal to -4 and alpha into beta will be 0। हमें क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है हमें PAB का। ट्राइंगल PAB बोला है, पॉइंट P जो अल्फा एंड बीटा है एंड AB मतलब हमारे पैराबोला के अंदर जो एरिया कवर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिगर देखें, सो ये जो एंटायरली एरिया कवर हो रहा है जिधर हमें हमारा पॉइंट P मिल रहा है, वहां का जितना एरिया कवर हो रहा है दैट विल बी अ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 8x। दिस इज गिवन इक्वेशन फॉर पैराबोला। नाउ y² x upon root 2 plus 2 root 2 is equal to 8x। मैंने ये y² कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है, हमारे प्रीवियस सम से। y is equal to x root 2 plus 2 root 2 हमें मिला था, therefore मैंने y के जगह x by root 2 plus 2 root 2 सब्स्टिट्यूट किया। Let's solve it further. This will be x square upon 2 plus 4x plus 8 is equal to 8x. So this will be x square plus 8x plus 16 is equal to 16x. So this will be x square minus 8x plus 16 is equal to 0. So this will be x equal to 4. Now y square is 8x, that is 8 into 4 which is equal to 32. तो y क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 32। Now root of 32 is 4 into 4 into 2। मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाले, so this will be 4 root 2। तो हमें ये फिगर के हिसाब से ये जो डिस्टेंस था दिस वाज 4 root 2
और ये जो पॉइंट पे जाके मिल रहा है दैट पॉइंट विल बी 4,0, यहाँ -4,0 आएगा और ये पॉइंट पे रहेगा 4,0। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा और ये ट्रायंगल का अभी एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू आई, दैट इज हाफ इंटू बेस। हम 4√2 ले रहे हैं। अब 4√2 दोनों एडअप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, राइट। 4√2 प्लस 4√2 हो जाएगा हमारा बेस एंड हाइट विल बी 4 + 4 दैट इज 8। सो लेट्स राइट दैट हाफ इंटू बेस हमारा 4√2 प्लस 4√2 है इंटू हाइट इज 4 + 4। So this will be half into 8√2 into 8 which is equal to 32√2। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB मिल गया 32√2। That is option number D. The final answer is option number A, alpha plus beta equal to -4, and option number D, area of triangle PAB is 32√2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.